Today we will study the reactions of alcohol where the alcohols will act as an electrophile. इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है. It means that is either having deficiency of electron or carry positive charge. तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल किस तरीके से रिएक्शन करता है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है, सबसे पहले हम मैकेनिज्म इसका डिस्कस करते हैं. जैसे बच्चों ये हमारा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है. हमने कोई हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया जिसने बच्चों हमें दिया H+ आयन. HCl, HBr, HI कुछ भी यूज कर सकते हैं. In the first step, this H+ ion connects with this oxygen and it becomes protonated alcohol. ये बच्चों प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया. अब यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ चुकी है. It will pull electron and thus this carbon will acquire partial positive charge. And this way, this carbon becomes electrophilic in nature. अब बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलाइड आयन है, फॉर एग्जांपल इफ वी टुक HBr, तो यहाँ बच्चों Br- आयन अब अटैक करेगा इस कार्बन पे. एंड अगर कार्बन को वैलेंसी चार्ज यहाँ बच्चों मेंटेन रखनी ही है, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस विल शिफ्ट विद दिस ऑक्सीजन और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. And the product formed will be the halide RCH2Br. So this will be the mechanism when we'll study the reactions. और बच्चों इसके अंदर अगर देखा जाए तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? यहाँ पर बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो रहा है CO. जो पहले हमने स्टडी किया था that was the reactions of alcohol or phenol where this O-H bond will break. Now we are studying the reaction where the bond C-O is going to break. Now the next is which hydrogen halide is more reactive. अगर अल्कोहल फिक्स्ड हो तो रिएक्टिविटी अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड की कंपेयर करना चाहते हैं तो बच्चों HI will be the most reactive. फिर उसके बाद आ गया बच्चों ब्रोमीन एंड एट लास्ट क्लोरीन. आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन. पीरियोडिक टेबल में बच्चों अगर देखा जाए तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बॉन्ड वीक हो जाएंगे और जितना बॉन्ड वीक होंगे उतना आसानी से ब्रेक हो जाएंगे एंड दैट विल इंक्रीज देयर रिएक्टिविटी. दैट्स बच्चों यू कैन नोट डाउन एज द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस देयर बॉन्ड बिकम्स वीकर, देयरफॉर रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. नाउ लेट अस डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल. यहां बच्चों मैंने 3 टाइप के अल्कोहल लिए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. The reactions are regarding breaking of the CO bond. Here this oxygen has to take up electron pair. हाँ, मगर O आपका आफ्टर प्रोटोनेशन O पॉजिटिव हो जाता है, but lastly this has to take up this electron pair. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कब ले पाएगा? जब कार्बन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. यहां बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैं 3 डिग्री अल्कोहल में. Thus the electron density on this carbon will be the highest and thus this oxygen can easily take up this electron pair. So this tertiary alcohol will be highly reactive. This secondary alcohol has only 2 electron repelling group. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चों कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, तो it will be a little difficult than this tertiary alcohol for this oxygen to take up electron pair. And lastly this will be the least reactive here. यहाँ बच्चों सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है.
तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ reactivity. Now you can write greater the number of alkyl groups connected to the carbon to which OH is attached, more easily the O of OH will pull the bonded pair of electrons. क्यों? Because that carbon is going to have greater electron density. Therefore, more will be its reactivity. So the order will be 3-degree alcohols are highly reactive than 2-degree, which are in turn more reactive than 1-degree. At first, let the reaction of alcohol is with hydrogen halide. यहाँ बच्चों हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अल्कोहल की रिएक्शन मैं शो कर रहा हूँ. But as we know, the tertiary alcohol is the most reactive. So the reaction with HX in the presence of zinc chloride is fast. वो किस तरीके से होगी? That I will discuss. In the secondary alcohol, it will be slower. It will take 5 minutes for the reaction to occur. But at room temperature, it is not so reactive. So no change occurs at room temperature. So the different rate of reaction will help to identify the 3 chemicals. जैसे बच्चों हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल था, उन तीनों में लुकास रिएजेंट डाल दिया. ऐड लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट क्या है बच्चों? ये जिंक क्लोराइड साथ में डाल दिया एज ए कैटलिस्ट. एंड दिस इज द HCl. फर्स्ट केस में क्या होगा, जैसे ही हम HCl डालेंगे, रिएक्शन इज सो फास्ट कि जल्दी से ये Cl आ जाएगा और OH हट जाएगा. तो इस रिएक्शन फास्ट होने से हमें ये पता चल जाएगा कि जिसमें क्लोराइड इमीडिएट बन गए उसकी टर्बिडिटी अपीयर हो गई. दैट इज टर्शियरी अल्कोहल. H और OH H2 बना देंगे. So in the case of tertiary alcohol where the reactivity is highest, turbidity appears immediately. Turbidity is immediate. Whereas in this case, जहां पर secondary alcohol है, reaction तो यहां भी होगी, यहां भी बच्चों OH हटेगा और क्लोरीन आएगा, but this will take some time. 5 मिनट का समय लगेगा. तो turbidity appears within 5 minutes. Turbidity appears within 5 minutes. मगर यहां पर बच्चों क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो है, तो रूम टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. No turbidity at room temperature. रिएक्शन हो सकती है अगर हम इसको हीट करें, but if the reactivity of this alcohol is used to identify or to distinguish this chemical, we will simply attempt to do the reaction at room temperature. So this way these 3 alcohols can be identified by this reaction also. सेकेंड बच्चों, रिएक्शन विद डायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2. अगर हमने कोई अल्कोहल लिया है, उसमें हम डालते हैं बच्चों SOCl2. दिस Cl इज गोइंग टू रिप्लेस दिस OH, तो हमें क्लोराइड मिल जाएगा. बाई प्रोडक्ट SO और O से बनेगा बच्चों SO2, और बाकी क्या बचा? क्लोरीन और हाइड्रोजन, इससे बनेगा HCl. दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी स्टडीड, जिसमें हमने कहा था कि दिस रिएक्शन इज प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज गैस एंड मेक्स द प्योरिफिकेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इजी. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन. अल्कोहल का डिहाइड्रेशन यानी अल्कोहल में से वाटर निकालना, एल्कीन की फॉर्मेशन.
which can be carried out in presence of sulfuric acid, phosphoric acid, zinc chloride anhydrous and heated alumina. Now let us take an example. अगर बच्चों हम इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हैं, दिस इज इथाइल अल्कोहल, और इसमें हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट. टेम्परेचर नीडेड फॉर दिस इज 443 केल्विन. हाई टेम्परेचर इसलिए चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी कम है. तो बच्चों OH एक कार्बन से निकलता है, उसके एडजेसेंट कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन, और इस तरीके से वाटर एलिमिनेट होगा. टू सेटिस्फाई द वैलेंसी इट विल फॉर्म वन मोर बॉन्ड, यानी एल्कीन बन जाएगा, एंड thus it will eliminate water. Now let us take the example of secondary alcohol. ये है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल. ये मैंने इसमें एक H अलग दिखा दिया बच्चों. इसको भी हम बच्चों H2SO4 से ट्रीट करते हैं, या इसके लिए माइल्डर H3PO4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पर बच्चों H3PO4 भी सिर्फ 85% काम कर सकता है. तो जैसे हम इसको एट लोअर टेम्परेचर 85% H3PO4 के साथ ट्रीट करेंगे, इसमें से भी बच्चों डिहाइड्रेशन होगा, एक कार्बन से OH दूसरे से H निकलेगा और ये बना देगा एल्कीन. दिस एल्कीन formed here is propene, prop1ene. और 1 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, because it is understood it cannot take any other position, so it will be propene. और इसी तरीके से अगर हम टर्शरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं which is highly reactive, एक H मैंने अलग दिखा दिया है just for showing elimination reaction. अब यहां जो रिएक्शन होगी इसमें बच्चों 85% भी नहीं चाहिए, और 20% H3PO4 at lower temperature 358 केल्विन पर ये रिएक्शन बच्चों हो जाएगी. एक कार्बन से OH दूसरे से H निकलेगा, dehydration, and thus the double bond formation takes place. CH2 बचेगा, तो ये बचा 2-methyl propene. So these are the reactions in which dehydration is taking place. The reactivity order is 3 degree, then 2 degree, and the least one is 1 degree, which is clear here because 3 degree में हमें milder condition चाहिए, 2 degree में थोड़ा सा little harder, और 1 degree में even higher temperature चाहिए, और concentrate sulfuric acid चाहिए. Now we will discuss the oxidation reaction. Oxidizing agent जो अभी मैं इस्तेमाल करूंगा बच्चों, KMnO4 एक strong oxidizing agent है, CrO3 is a weaker, PCC भी आपका एक weaker oxidizing agent है. तो बेसिकली किस तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, इसमें बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है. जैसे ये हमारा एक अल्कोहल है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यहाँ पर बच्चों H यहाँ से निकलेगा और एक H इस कार्बन से निकलेगा, एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से. ये H2 यहाँ से निकल जाएगा, एंड टू सेटिस्फाई वैलेंसी इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. दिस विल चेंज इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड. और बच्चों इस तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले बच्चों प्राइमरी अल्कोहल डिस्कस करते हैं. तो अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं या प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH, और ये हमने बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया KMnO4, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सो हाइड्रोजन निकलेगा ऑक्सीजन से और उसके
साथ वाले कार्बन से, उनके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, CH3CHO, और ये जो दो H हैं O के साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O. It will further oxidize. KMnO4 एक strong oxidizing agent है. This oxygen again going to connect with this CH3CHO and will produce CH3COOH. तो ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल में सबसे पहले स्टेप में बनता है बच्चों एल्डिहाइड, और दूसरे स्टेप में बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी अल्कोहल यानी 2 डिग्री, CH3 CH CH3 एंड OH, चाहे हम KMnO4 लें या CrO3 लें, दोनों ही ऑक्सीडाइज कर देंगे. पहला स्टेप कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी इन द सेम वे, मगर बच्चों ये कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता. सो 2 डिग्री alcohols will lead to the formation of ketone. मगर बच्चों जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं they don't get oxidized. उनके पास this carbon does not carry any hydrogen. ये जो C होगा इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, so they don't oxidize. Now I'm taking an example of but2-ene-1-ol. हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए यहाँ पर, but this double bond should not be affected. So for that we need pyridinium chlorochromate, a milder oxidizing agent. तो बच्चों इसमें क्या होता है, एक होता है CrO3 और एक होता है HCl and pyridine. So this makes pyridinium chlorochromate. और इसमें क्या होगा बच्चों, this will get oxidized without disturbing the other positions. एल्कीन को भी टच नहीं करेगा और ये बना देगा but2-ene-1-ol या 2-enal. Now let us discuss the reactions with copper at 573 K, which is the dehydrogenation. जैसे ही हम अल्कोहल्स को पास करते हैं कॉपर मेटल पे एट 573 K, dehydrogenation occurs in the same way for primary and secondary alcohol. तो इस तरीके से बच्चों प्राइमरी अल्कोहल का बनेगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का बनेगा कीटोन. यहाँ पर बच्चों कीटोन बन गया. और टर्शरी अल्कोहल में देखें तो बच्चों ये आपका डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, रादर यहाँ पर बच्चों क्योंकि H पॉसिबल नहीं था तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म एल्कीन 2-methyl prop-1-ene. So these were the reactions. In the next class we will study some other reactions of phenol.